بارشوں اور سیلاب سے تباہی، قومی ایمرجنسی نافذ۔ سندھ، بلوچستان، جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا میں ندی نالوں میں طغیانی سے بڑے پیمانے پر نقصانات۔ منہ زور سیلابی ریلی سینکڑوں دیہات اور بستیوں میں داخل۔ 3 کروڑ سے زائد افراد براہ راست متاثر۔ ملک بھر میں اموات کی تعداد 900 سے تجاوز کر گئی۔ پاک فوج اور سول اداروں کی امدادی کارروائیاں۔ مسلسل بارشوں سے ریلیف آپریشن متاثر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے بین الاقوامی برادری اور عالمی اداروں سے ہنگامی تعاون کی اپیل۔ تباہی کا حجم اتنا زیادہ ہے کہ وفاقی یا صوبائی حکومتیں تنہا کچھ نہیں کر سکتی۔ متاثرین کو خوراک، ادویات، خیموں اور عارضی پناہ گاہوں کی اشد ضرورت ہے۔ انٹرنیشنل پارٹنرز وسائل کی دستیابی میں مدد کریں، وزیر اعظم۔ وزیر اعظم کی اپیل پر بین الاقوامی شراکت داروں کی جانب سے تعاون کا اعلان۔ ورلڈ بینک کا سیلاب متاثرین کے لیے فوری طور پر $35 کروڑ دینے کا اعلان۔ ورلڈ فوڈ پروگرام $11 کروڑ دے گا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کا $2 کروڑ دینے کا اعلان۔ UK ایڈ کی طرف سے 15 لاکھ پاؤنڈ کی فوری امداد کی یقین دہانی۔ وسط اور طویل مدتی منصوبوں کے لیے 38 بلین پاؤنڈ دینے کا بھی اعلان۔ کور کمانڈرز کانفرنس کو ملک میں سیلابی صورتحال اور فوج کی امدادی کارروائیوں پر تفصیلی بریفنگ۔ شرکاء کا جانی اور مالی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار۔ سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد جاری رکھنے کا عزم۔ مصیبت کی اس گھڑی میں ہر متاثرہ فرد تک پہنچنا ضروری ہے۔ فارمیشنز ریلیف آپریشن میں تمام وسائل بروئے کار لائیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ بارشوں اور سیلاب سے مواصلاتی ڈھانچہ شدید متاثر۔ رابطہ سڑکیں بہہ گئیں۔ امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا۔ مٹا بانڈا کے قریب شاہراہ قراقرم ٹریفک کے لیے بند۔ تھاکوٹ سے داسو تک بھی ٹریفک معطل۔ اچھار نالہ میں طغیانی سے کوہستان کا زمینی رابطہ منقطع۔ کراچی اور کوئٹہ کے درمیان سڑک کا رابطہ بحال۔ سوات ایکسپریس وے کو جزوی طور پر کھول دیا گیا۔ بحرین کالام روڈ اور اپر چترال شاہراہ بھی ٹریفک بحال۔ راکھی گاج میں لینڈ سلائیڈنگ سے پنجاب اور بلوچستان کا رابطہ منقطع۔ بلوچستان میں بارش نے برج متکزئی ڈیم اوور فلو ہونے سے پانی آبادیوں میں داخل۔ چمن، قلعہ عبداللہ، ڈیرہ بگٹی، بارکھان، کوہلو، موسیٰ خیل، قلعہ سیف اللہ، کوئٹہ، زیارت، ہرنائی، پشین، نصیر آباد، بولان، آوران، قلات، خستار اور لسبیلا کے نالوں میں طغیانی۔ متاثرین اہل وطن کے تعاون کے منتظر۔ دریائے سندھ میں پانی کا بہاؤ 2010 کے سپر فلڈ سے زیادہ۔ بدین، نوشہر و فیروز، جیکب آباد، لاڑکانہ، دادو، ٹھٹا، کمر شہداد کوٹ، شہید بنظیر آباد، سانگھڑ اور دوسرے اضلاع میں تباہی۔ امدادی کارروائیاں جاری۔ صوبائی حکومت کی متاثرین کے لیے خیموں کی فراہمی میں تعاون کی اپیل۔ متاثرین کو راشن اور بنیادی اشیاء کی فراہمی جاری۔ کوہ سلیمان کی رود کوہیوں میں طغیانی سے تباہ کاریاں۔ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور میں ہر طرف پانی ہی پانی۔ مواصلاتی رابطے منقطع ہونے سے مشکلات میں اضافہ۔ بھاری مشینری سے شاہراہوں کی بحالی کا عمل جاری۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پشا پل کے قریب بڑا سیلابی ریلا گزرنے کے باعث ہائی الرٹ۔ ڈی آئی خان کا بنو اور ٹانک سے زمینی رابطہ منقطع۔ انڈس ہائی وے بھی متعدد مقامات پر بند۔ ٹانک میں ایمرجنسی نافذ۔ گلگت بلتستان کے بیشتر علاقوں میں شدید بارش کی وجہ سے نظام زندگی متاثر۔ نلتر کے مختلف مقامات پر رابطہ سڑک بند۔ ضلع خضر کی تحصیل اشکمن میں سیلابی پانی آبادیوں میں داخل۔ متاثرہ علاقوں میں افواج پاکستان سول اداروں کی معاونت میں مصروف۔ بلوچستان، سندھ، جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں امدادی سرگرمیاں۔ آرمی، نیوی اور فضائیہ کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن۔ میڈیکل کیمپ قائم۔ متاثرین میں راشن، خیمے اور ضروری اشیاء تقسیم۔ آرمی ایئر ڈیفنس کمانڈ کے ماتحت ریلیف اور ریسکیو آرگنائزیشن قائم۔ پاک فوج کا 3 دن سے زائد راشن بھی سیلاب متاثرین میں تقسیم۔ تمام جنرل آفیسرز کی 1 ماہ کی تنخواہ متاثرین کو دینے کا فیصلہ۔ تمام بڑے شہروں میں عطیہ مراکز بھی قائم۔
غیر معمولی بارشوں سے غیر معمولی نقصان، بحران شدت اختیار کر گیا۔ وفاقی حکومت یا کسی صوبے کے لیے اکیلے اس چیلنج سے نمٹنا ممکن نہیں۔ مانسون کے دورانیے میں توسیع کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کھیلوں کے فروغ کے لیے اہم فیصلہ، نوجوان کھلاڑیوں کو مواقع دینے کے لیے ڈپارٹمنٹل سپورٹس بحال کرنے کا اعلان۔ دولت مشترکہ اور اسلامی یکجہتی کھیلوں میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی، چیک تقسیم کیے۔ گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کا اپنے گاؤں میں ہسپتال کے قیام اور اسکول اپ گریڈ کرنے کا مطالبہ، وزیر اعظم نے کھلاڑیوں کے تمام مطالبات منظور کر دیے۔ سعودی عرب کا پاکستان میں $1 ارب سرمایہ کاری کا اعلان، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ نے سعودی عرب کی جانب سے پاکستان میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کی یقین دہانی پر شکریہ ادا کیا۔ شہزادہ فیصل بن فرحان کا سیلاب میں ہونے والے نقصانات پر اظہار افسوس۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی، اڑی کے علاقے میں تازہ کارروائی میں 3 نوجوان شہید۔ سری نگر، بڈگام، کپواڑہ، پلوامہ، اسلام آباد، شوپیاں، کلگام سمیت مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں۔ امریکہ کا یوکرین کے لیے مزید $3 ارب کی فوجی امداد کا اعلان، زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کی فراہمی بھی شامل۔ اقوام متحدہ کی ایک بار پھر جنگ بندی کی اپیل، امن کی ضرورت ہے، فریقین فوری طور پر جنگ بند کرے، سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی اپیل پر سیلاب متاثرین کے لیے بین الاقوامی تنظیموں اور مالیاتی اداروں نے $50 کروڑ سے زائد کی فوری امداد کا اعلان کیا ہے۔ بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندوں نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے سیلاب متاثرین کی فوری بحالی کے اقدامات پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے یہ بتایا کہ بین الاقوامی اداروں کی طرف سے اسی ہفتے امداد کی منتقلی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں انٹرنیشنل پارٹنرز کے اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں کی مشکل میں پھنسے پاکستانیوں کی مدد کا خیر مقدم کیا۔ ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے وزیر اعظم کو عالمی بینک کی طرف سے $350 ملین کی فوری امداد کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم کی فلڈ ریلیف کیش پروگرام کی تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ بینک کی امداد رواں ہفتے کے آخر تک فراہم کر دے گا۔ اس کے علاوہ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے بھی نقصانات کے تخمینے کے بعد جامع منصوبہ بندی سے پاکستان کے ساتھ ورلڈ بینک کی طرف سے تعاون کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام نے سیلاب متاثرین کے لیے $110 ملین کی امداد کا اعلان کیا، جبکہ ایشیائی ترقیاتی بینک نے $20 ملین اور UK8 نے £1.5 ملین کی فوری امداد کا اعلان کیا۔ UK8 کی جانب سے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے وسط اور طویل مدتی منصوبوں کے لیے £38 ملین کا بھی اعلان کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ پہلے دن سے ریسکیو، ریلیف اور بحالی کی سرگرمیوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ فوج، سرکاری ادارے، شہری خدمات کے محکمے، ڈاکٹر، نرسز اور رضاکار مشکل حالات میں بڑے جذبے سے کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے انٹرنیشنل پارٹنرز کو متاثرہ علاقوں کی دورے کی دعوت دی۔ راولپنڈی میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی صدارت میں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، جس میں بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب میں سیلابی صورتحال اور پاک فوج کی امدادی کارروائیوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ISPR کے مطابق شرکاء نے سیلاب کے باعث قیمتی جانی اور مالی نقصان پہ گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں ہر ایک متاثرہ فرد تک پہنچنا ضروری ہے۔ تمام فارمیشنز ریلیف آپریشن میں دستیاب وسائل بروئے کار لائیں۔ آرمی چیف نے امدادی سرگرمیوں میں پاک فوج کی بھرپور معاونت کو سراہا۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں ملک کی داخلی اور خارجی سلامتی کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے فارمیشنز کو آپریشنل تیاریاں جاری رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے یہ کہا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں انسداد دہشت گردی کے لیے بھرپور کارروائیاں جاری رکھی جائیں۔ بارشوں اور سیلاب سے بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی کی وجہ سے قومی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ ملک بھر میں اموات کی تعداد 900 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ 3 کروڑ افراد براہ راست متاثر ہوئے ہیں۔
اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان نے بتایا کہ بحران پیدا ہو چکا ہے، حالات اور اعداد و شمار تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ اسی پر رپورٹ کریں گی صدف افضل۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان میں غیر متوقع بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سیلاب کی صورتحال انتہائی سنگین ہے۔ اس وقت سندھ کے 30 سے زائد اضلاع سیلاب کی زد میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متاثرین کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 913 لوگ لقمۂ اجل ہوئے ہیں اور اس میں انجریز کافی ہیں، اور کے پی کے حوالے سے بچوں کا بہت اس میں انجریز ہوئی ہیں اور ڈیمیج ہوا ہے۔ 169 کے پی میں ہلاکتیں ہوئی ہیں جی، 164 پنجاب میں، 293 سندھ میں، 230 بلوچستان میں۔ یہ بہت ہی غیر متوقع اور غیر معمولی قسم کی بارشیں ہیں۔ وفاقی وزیر شہری رحمان نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی بڑا چیلنج ہے۔ این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے اور پاک فوج سیلاب متاثرین کی مدد کر رہے ہیں۔ سارے ملک کے واٹر پمپس اس وقت بالکل ڈپلوائے ہوئے ہیں، سارے ملک کے ارتھ ایکسٹریکٹرز، انفراسٹرکچر مینج کرنے سب ڈپلوائے ہوئے ہیں۔ ہر شہر میں آرمی نے بیس کیمپس لگائے ہوئے ہیں، ٹینٹس آرڈر کر دیے ہیں، سندھ نے کر دیے ہیں، بلوچستان نے کیے ہیں، وفاق نے ٹینٹس آرڈر کیے ہوئے، پی ڈی ایم اے نے۔ تو ٹینٹس اور اس وقت خوراک جو ہے اس کی رہائش اور خوراک کی ظاہر ہے ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اس گیپ کو پر کرنے کے لیے صبح شام رات لگایا ہوا ہے، این ڈی ایم اے کا وار روم بالکل کھلا ہوا ہے۔ شہری رحمان نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ بین الاقوامی برادری سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے آگے آئے۔ موسمیاتی تبدیلی سے نبرد آزما ہونے کے لیے جامع پالیسی اور اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ غیر معمولی تباہی سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے قومی جذبہ دکھانا ہوگا۔ بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی کی وجہ سے خطیر رقم درکار ہے۔ متاثرین کی مدد کے لیے پوری قوم پاکستان کے اندر احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ ایک بیان میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ مل کر تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ عوام کی مدد سے ریسکیو اور ریلیف کے عمل کو تیز کیا جا سکتا ہے۔ کچھ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ دریائے سندھ کے گڈو اور سکھر بیراج کے مقام پر سیلابی پانی کا دباؤ برقرار ہے۔ صوبے میں تیار فصلیں تباہ اور باغات کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ سندھ حکومت نے متاثرین کے لیے ٹینٹ سٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد زبیر الدین۔ کراچی میں وزیر اعلیٰ کی صدارت میں رین ایمرجنسی ریلیف اور ریسکیو کے حوالے سے منعقدہ اجلاس میں صوبے کے آفت زدہ اضلاع میں امدادی اور بحالی کے کاموں کو انتظامیہ، پاک فوج اور فلاحی اداروں کے ساتھ مل کر جنگی بنیادوں پر کرنے کی حکمت عملی ترتیب دی گئی۔ اجلاس میں مراد علی شاہ نے بتایا کہ انہوں نے صوبے کے مختلف اضلاع کا دورہ کیا ہے جہاں کچے مکانات اور فصلیں تباہ ہوئی ہیں، وہیں سڑکوں اور سرکاری عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ سندھ حکومت انجینئرنگ کور اور کور 5 کے متعلقہ نمائندے مل کر نقصانات کا سروے کریں، جبکہ نقصانات کا تخمینہ یونین کونسل کے ذریعے بھی لگایا جائے اور ڈپٹی کمشنر کے پاس اس کا ریکارڈ موجود رہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پی ڈی ایم اے سندھ نے 1,86,000 خیموں کا آرڈر دیا ہے جس کی خریداری میں کور 5 مدد کرے گی اور سندھ حکومت فنڈز فراہم کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم ٹینٹ سٹی بھی بنائیں گے جہاں کھانے پینے کی سہولیات کے ساتھ ساتھ متاثرین کو مکمل بحالی تک ہر قسم کی سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دوسری جانب حیدرآباد، نواب شاہ، کشمور اور دیگر چند مقامات پر ہلکی بارش ہوئی، تاہم گزشتہ دنوں کی شدید بارشوں کے باعث نشیبی علاقے اب بھی زیر آب ہیں جس سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور لوگ امداد کے منتظر ہیں۔ شدید سیلابی صورتحال سے تیار فصلیں تباہ ہوئی ہیں اور پھلوں کے باغات کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ دریائے سندھ کے گڈو اور سکھر بیراج کے مقام پر سیلابی پانی کا دباؤ برقرار ہے جس سے پنو عاقل کے کچے کے مختلف علاقے زیر آب آ چکے ہیں۔ پاک فوج، صوبائی انتظامیہ، این ڈی ایم اے، فلاحی ادارے کی جانب سے متاثرین کی امداد کا سلسلہ صوبے بھر میں جاری ہے۔
सूबाई वजीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन ने ताल्लुका दही में मुख्तलिफ कैंप्स का दौरा किया और मुतासरीन को दी जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत बारिश मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेगी। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, बलूचिस्तान में मजीद बारिशों से हर तरफ दरिया का मंजर है। बुर्ज मतकज़ई डैम ओवरफ्लो होने के बायस सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल हो गया। चमन, कला अब्दुल्ला, डेरा बुगटी, बारखान, कोहलू, मूसा खैल, कला सैफुल्ला, कोयटा, ज़ियारत, हरनाई, पश्तीन और दूसरे इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया गया है। नाज़रीन, इसी हवाले से कोयटा से सरफराज शेख की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल मजीद गंभीर हो गई है। PDMA की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक अफराद की तादाद 234 हो चुकी है। मजमूई तौर पर 27,747 कच्चे मकानात मुनहदम हुए, जबकि 710 किलोमीटर मवासलाती निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ। ताहाल बलूचिस्तान में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से मुल्हका शाहराहों पर ट्रैफिक मुअत्तल है। हुकूमत बलूचिस्तान मुतासरा खानदानों की दादरसी के लिए अपना मिशन जारी रखे हुए है। ज़िला इंतजामिया, पाक आर्मी, FC बलूचिस्तान, दिगर मुतल्लिका इदारे आफतज़दा इलाकों में इमदाद व बहाली के लिए मसरूफ़ हैं। मुशीर दाखिला व PDMA मीर ज़िया लांगो ने सूबे में जारी इक़दामात का जायजा लेने के लिए PDMA कंट्रोल रूम का दौरा किया। बलूचिस्तान हुकूमत अपने वसाइल में रहते हुए कि उसके जितने वसाइल हैं वो अपने वसाइल इस्तेमाल कर रही है और अभी तक हम 40,000 के करीब तक अपने लोगों को जो है टेंट्स दे चुके हैं। मजीद भी हम जा रहे हैं, DCs को कह रहे हैं आप अपना जो है वो सर्वे फास्ट कर लें। 1.5 सदी कबल अंग्रेज दौर में कायम होने वाला कोलपुर और मच रेलवे स्टेशन के दरमियान दोजान के मुकाम पर तारीखी पुल सैलाबी रेले की नजर हो गया। DS रेलवे की जेर निगरानी रेलवे ट्रैक की मुरम्मत का काम जारी है। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा और इसके नवाही इलाकों में भी जिला इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन की मुआवनत भरपूर अंदाज में की जा रही है। सैलाब ज़दगान की इमदाद व बहाली हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। आइए मिलकर इस अज़्म का इजहार करें कि हमने इमदाद व बहाली के लिए हुकूमती काविशों का भरपूर साथ देना है। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। डेरा गाजी खान डिवीजन में मुसलसल बारिश की वजह से रोदकोहियों में तोयानी से तबाहकारियां जारी हैं। राखी गाज पर लैंडस्लाइडिंग से पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान राब्ता मुनक़ता हो गया है। तफसील ख्वाजा मोहम्मद कलीम से। डेरा गाजी खान डिवीजन की कोहे सुलेमान रेंज में गुज़िश्ता 2 हफ्ते से जारी तूफानी बारिशों का सिलसिला ताहाल थम नहीं सका। शदीद बारिशों के बायस रूद कोहियों से आने वाले सैराबी रेलों ने शहरी और देही जिंदगी को शदीद मुतासिर किया है। जिला डेरा गाजी खान में अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 350 से जायद देहात और 80 यूनियन काउंसिल्स सैलाब की लपेट में आ चुकी हैं। सैलाब से तकरीबन 7 लाख अफराद बराह रास्त मुतासिर हुए हैं और तकरीबन 15 लाख एकड़ ज़रई रकबा पानी में डूब चुका है। डेरा गाजी खान डिवीजन के दूसरे जिला राजनपुर में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। अभी तक ऑलमोस्ट 7,500 दैट्स अ टेंटेटिव फिगर जो हाउसेस कम्प्लीटली डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं। 89,000 एकर्स टेंटेटिव क्रॉप डैमेज्ड है और इसके अलावा दिस फिगर इज स्टिल इंक्रीजिंग। वजीर खजाना पंजाब मोहसिन लगारी का कहना है कि इमदादी कामों में ताखीर से बचने के लिए सैलाब मुतासरा इलाकों की जिलाई इंतजामिया को फंड्स मुंतकिल कर दिए गए हैं। हुकूमत पंजाब ने एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है जिसमें डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को पैसे खर्च करने का इख्तियार दे दिया गया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू के साथ साथ इमदादी कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी गई हैं। ताहम सैलाब मुतासरीन की बड़ी अक्सरियत इनके नाकाफी होने की शिकायत कर रही है। सड़क पे बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। अभी तक हुकूमत ने पूछा भी नहीं है कौन लोग हैं कौन नहीं है। यतीम बच्चे हैं, मैं सिर्फ बच्चे काटते हैं, दाने मेरे जरिए हम थी लौट गए, मैं कोई चीज़ नहीं कर सकी। मेरा पुत्र बीमार हो पे था, मेरे को ना कोई टेंट सेंट दिए ने ना कोई छाती ने। फ्लड रिलीफ कैंप्स में मौजूद बच्चों की तालीमी सरगर्मियां बहाल रखने की कोशिशें भी जारी हैं। डेरा गाजी खान और राजनपुर के वकीलों का कहना है कि पंजाब हुकूमत ताहाल उनकी मदद के लिए नहीं पहुंची। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, राजनपुर। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों का सिलसिला थम न सका। मुख्तलिफ इलाकों में मवासलाती राब्तों की बहाली के लिए इकदामात जारी हैं। इसी हवाले से तफसीलात बताएंगे मोहम्मद सज्जाद। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से टांक, डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत, सवात, कोहिस्तान, चतराल और दीर अपर सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। अपर और लोअर चतराल, अपर कोहिस्तान और डेरा इस्माइल खान के बाद टांक में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है।
PDMA के रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे के मुख्तलिफ अजला में दर्जनों मकानात को नुकसान पहुंचा है। मूसलाधार बारिशों के बायस कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेलों ने डेरे इस्माइल खान और टांग में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। डेरे इस्माइल खान में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। टांग और रोड कोहियों से आने वाले सैलाबी रेले के बायस DI खान शहर 3 अतराफ से ट्रैफिक के लिए बंद हो चुका है। बनू, जनूबी वजीरिस्तान और बलूचिस्तान जाने वाले रास्ते मुख्तलिफ मुकामात पर बंद है। डेरा शहर के करीब बरसाती नाले में बड़ा सैलाबी रेला गुजरने के बायस अतराफ की आबादी को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। रता कलाची स्पोर्ट्स स्टेडियम को रिलीफ कैंप में तब्दील कर दिया गया है। इलाके में पाक फौज, FC, रेस्क्यू 1112 और पुलिस की टीमें इमदादी कामों में मसरूफ है। वफाकी वजीर मवासिलात मौलाना असद महमूद इमदादी सरगर्मियों की खुद निगरानी कर रहे हैं। लकी मरवत में अरसला के मुकाम पर पुल टूटने से खैबर पख्तूनख्वा के जुनूबी अजला का पंजाब से राबिता मुनक़ती हो गया है। अपर कोहिस्तान में ज़ेद काड़ा नाले में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस शाहराह कुराकुरम का एक बड़ा हिस्सा सैलाबी रेले की नजर हो गया। दोपहर के मुकाम पर सैलाबी रेले में 5 अफराद बह गए, जिनमें से एक को बचा लिया गया है, जबकि 4 अफराद की तलाश जारी है। मलकान के करीब पलई के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग से स्वात एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जुज़वी तौर पर मुअत्तल रही, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया। स्वात के सयाहती मुकाम कालाम में पेशमाल के मुकाम पर पुल बह जाने से बड़ी तादाद में सयाह पंस कर रह गए हैं। हजारा डिवीजन के अजला मानसेहरा और एबटाबाद में गुज़िश्ता रोज से जारी बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी आई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की हिदायत पर 35 ट्रक इमदादी सामान DI खान जबकि 9 ट्रक इमदादी सामान अपर चतराल रवाना कर दी गई हैं। इमदादी सामान में खेमे, मेट्रेस और फूड पैकेजेस शामिल है। मोहम्मद सज्जाद, PTV न्यूज़, पेशावर। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के भी बेशतर इलाकों में वक्फे से जारी बारिश की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हुआ है। तफसील बता रहे हैं नज़ाकत अली। गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। शदीद बारिश की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। सयाहती इलाका नलतर के मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब आने से राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि सैलाब की वजह से नलतर 18 मेगावाट बिजली घर से गिलगित शहर के लिए बिजली की फराहमी मुनक़ता है। सिकरदू और मज़ाफ़ात के इलाकों में रात तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस नदी नालों में पानी के बहाव में भी इजाफा हुआ है। ज़िला गिज़र की तहसील इश्कोमन में सैलाबी रेला आबादी में दाखिल हो गया है, जिससे ज़ेर तामीर पावर प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गया। बिजली घर में मौजूद अफराद को मुकामी रजाकारों ने महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। तहसील इश्कोमन के बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता ज़िली हेड क्वार्टर से मुनक़ता है। दूसरी जानिब वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की हिदायत पर सैलाब के नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए बनाई गई कमेटी मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों का दौरा कर रही है। इस हवाले से ज़िला गिज़र में सैलाबी सूरत हाल देखने के लिए सीनियर वज़ीर कर्नल रिटायर्ड उबैदुल्ला बेग, वज़ीर इत्तलाआत फ़तहुल्लाह, वज़ीर ख़जाना जावेद मनवाज, सेक्रेटरी दाखिला और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के DG मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। नज़ाकत अली, PTV न्यूज़, गिलगित। नाज़रीन, पाक फौज का सैलाब से मुतासर इलाकों में भरपूर इमदादी ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक मुतासर इलाकों में मुनज़्ज़म रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने के लिए हेडक्वार्टर्स आर्मी एयर डिफेंस कमांड के मातहत रिलीफ और रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन कायम कर दी गई है। अब तक 40,000 लोगों को महफूज मकामात पर और आर्मी की कायम करदा 137 से ज़ायद रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया जा चुका है। 200 के करीब RC तिब्बी मराकज़ में 23,000 मुतासरीन को तिब्बी इमदाद फराहम की जा चुकी है। आर्मी चीफ के हुक्म पर पाक फौज अपना 3 दिन से जायद राशन भी सैलाब मुतासरीन में तकसीम कर चुकी है। इसी जज्बे के तहत पाक फौज के तमाम जनरल ऑफिसर्स ने अपनी 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए अतिया कर दी है। पाक फौज तमाम नोटिफाइड मुतासर इलाकों में मुश्तरका सर्वे करने में सिविल इंतजामिया की भरपूर मदद कर रही है, जिसका आगाज सूबा बलूचिस्तान से कर दिया गया है। पाक फौज ने वफाकी हुकूमत की हिदायत पर तमाम बड़े शहरों में अतिया मराकज़ कायम कर दिए हैं, जहां शहरी रोजमर्रा इस्तेमाल की जरूरी अशिया और खाने पीने का सामान अतिया कर सकते हैं। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने पाकिस्तान में $1 अरब सरमायाकारी करने का फरमान जारी किया है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें वज़ीर ख़ारिजा ने $1 अरब की सरमायाकारी के ऐलान पर शुक्रिया अदा किया। दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल किया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने सैलाब से होने वाले नुकसानात पर अफसोस का इजहार करते हुए पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से यकजहती का इजहार किया। नाज़रीन, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल की तफसील जानते हैं नवीद हयात से। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मानसून बारिशों के नए स्पेल का आगाज हो गया है।
महकमा मौसमियात ने आइंदा 12 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई कर रखी है। PDMA के मुताबिक आज से 26 अगस्त के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मजीद तेज़ बारिशों के बायस लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी और मुल्तान डिवीजन में नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खतरा है। शकरगर के नवाई गाँव में बारिशों की वजह से दरिया ओज में तोगयानी से मुतअद्दिद देहातों की सैकड़ों एकड़ पर फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। तहसील इंतजामिया की बेहिसी पर किसान सरापा एहतजाज हैं। पसरूर में हालिया तूफानी बारिशों और भारत की जानिब से नाला डेक में छोड़े गए पानी की वजह से चंद रोज कबल आने वाले सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाबी रेले की वजह से सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी धान की फसल तबाह हो गई। पसरूर के नवाई गाँव कालोवाली और रापोवाली के दरमियान पड़ने वाले शगाफ पर इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। पंजाब के जिन अजला में सैलाबी सूरत हाल है वहाँ ज़िले इंतजामिया और मुतलका इदारे हाई अलर्ट हैं। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब हुकूमत की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रही है और सैलाब से मुतासरा हर गाँव और बस्ती में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, चीन ने सैलाबी मुतासरीन की बहाली के लिए वज़ीर-ए-आज़म फ्लड रिलीफ फंड में 1 करोड़ 55 लाख रुपए फराहम करते हुए मुश्किल घड़ी में हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। रिपोर्ट करेंगे राहिल अंसार। नेशनल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट सेंटर में इमदादी रकम देने की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के सबसे ज्यादा असरात पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सैलाब की तबाहकारियों के नतीजे में अब तक 903 जानों का ज़िया, 1293 अफराद जख्मी, जबकि 50 लाख से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा है। This rainfall has come in those areas which previously used to receive very low or moderate rainfall. Therefore, almost entire province of Sindh and Balochistan have seen devastation on the scale that has not been seen before. This is a great moment of crisis for Pakistan, and we are very grateful to our Chinese brothers that who have felt the pain of Pakistani nation as their own pain. चीन के सफीर नोंग रोंग ने कहा, चीन इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ है। उन्होंने सैलाब की तबाहकारियों से निपटने और मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी करवाई। Pakistan now is facing severe flood and landslide disaster, which caused much casualties and heavy economic loss. Chinese government expressed concern and sympathy in the first time to bereaved families, the injured, and the people in the disaster-hit areas, to offer urgent humanitarian assistance for the disaster-affected people, including 25,000 tons and other relief materials. इससे कबल वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सदारत में होने वाले इजलास में मुल्क में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वफाकी वजीर ने सैलाबज़दा इलाकों के लिए सरकारी डॉक्टर्स की टीमें तश्कील देने समेत मुतासरा इलाकों में ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने की भी हदायत की। पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए चीन की इमदाद दोनों मुल्कों की लाजवाल दोस्ती की अक्कास है। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम चाहे मुख्तलिफ सियासी नज़रियात के हामिल और मुख्तलिफ आरा रखते हों, ताहम जब भी हमारे मुल्क में बड़ी कुदरती आफत आती है तो मुख्तलिफ तबकों में बटे यही लोग एक मुत्तहिद और मजबूत कौम बनकर सामने आते हैं। हालिया सैलाब की तबाहकारियों के बायस एक बार फिर हमें मुश्किल में घिरे अपने बहन भाइयों की मदद के लिए माजी के जज्बे को जिंदा करने की ज़रूरत है। इस पर रिपोर्ट करेंगे अरसलान असद। क़याम पाकिस्तान के बाद से ही हमारा मुल्क कुदरती आफात से मुतासिर हो रहा है, जिनमें सबसे ज्यादा सैलाब और जंजले तबाहकुन साबित हुए हैं। 2005 के तबाहकुन जंजले की यादें सबके जहनों में ताज़ा हैं। ताहम एक बात जो पूरी दुनिया ने इस जंजले के बाद देखी और सराही,
वो पाकिस्तानी अवाम का हौसला, इत्तेफाक और जज्बा एसार था, जिसकी मिसाल शायद दुनिया में कहीं और मिले। इसी तरह 2010, 11 और 12 में आने वाले तबाहकुन सैलाबों के बाद जिस तरह खैबर से मेहरान और गिलगित बल्तिस्तान से आज़ाद कश्मीर के बासियों ने सैलाब ज़दगान की दिल खोल कर मदद की, इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तानी अवाम आम दिनों में चाहे मुख्तलिफ सियासी तबकों में बटे हों, ताहम जब भी कोई बड़ी कुदरती आफत आती है तो यही अवाम एक मुत्तहिद कौम बनकर सामने आते हैं और इंतहाई हौसले, तहम्मुल और इसार के जज्बे से कुदरती आफत का मुकाबला करके पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरते हैं। इन दिनों एक बार फिर पाकिस्तान के अक्सरियती इलाके सैलाब से मुतासरा हैं, जहां बड़े पैमाने पर माली नुकसानात हुए हैं। कई मुतासरीन हमेशा के लिए अपने प्यारों को सैलाबी पानी में खो बैठे हैं, जबकि लाखों बेघर हो चुके हैं। सिर्फ सिंध में 400 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसी तरह बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई देहात सफ़े हस्ती से मिट चुके हैं। हजारों किलोमीटर सड़कें और दर्जनों पुल मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। कोई भी मुल्क या हुकूमत इस कदर बड़ी कुदरती आफत से अकेले नहीं निपट सकती। ऐसे में एक बार फिर हालात का तकाजा है कि हम सब एक कौम बनकर मसाइब और दुख के शिकार अपने बहन भाइयों की मदद के लिए आगे बढ़ें। उनकी रिहाइश, खाने पीने और अद्वियात के इंतजाम के लिए माजी के जज्बे को जिंदा करें। इस मकसद के लिए वज़ीर आज़म सैलाब रिलीफ फंड कायम किया गया है, जिसमें पूरी कौम खुसूसन मुखय्यर अफराद और बड़े कारोबारी इदारों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अरसलान सदकट खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क में खेलों के फ़रोग़ और नौजवानों को मौक़े फराहम करने के लिए डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स बहाल करने का ऐलान किया है। PTI हुकूमत ने डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स के लिए फंडिंग रोक दी थी, जिसके बायस हज़ारों खिलाड़ी बेरोजगार हो गए थे। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद नवीद असर। खिलाड़ी दुनिया भर में किसी भी मुल्क का वकार बुलंद करने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनकी इस अहमियत के पेश नज़र दौलत मुश्तरका और इस्लामी यकजहती खेलों में नुमायां पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों को वज़ीर आज़म हाउस बुलाकर इनामी चेक दिए और उनकी हौसला अफजाई की। वज़ीर आज़म ने खिलाड़ियों के मुतालबे पर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स बहाल करने का ऐलान किया। डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स के ऊपर जो बैन लग गया था, उस बैन को मैं आज ख़त्म कर रहा हूँ, ताकि कंपटीशन को दोबारा बढ़ाया जाए बिटवीन डिपार्टमेंट्स और इस तरह पाकिस्तान को खेलों के मैदान में अपनी कैपेसिटी और अपनी जो सलाहियतें हैं उसका लोहा बनवा सकें। PTI हुकूमत ने डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स के लिए फंडिंग रोक दी थी, जिसके बायस हजारों खिलाड़ी बेरोजगार हो गए थे। मुल्क में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि हुकूमत उन्हें तमाम मुमकिन वसाइल फराहम करेगी। लाखों करोड़ों लोग जो इस वक्त इस सैलाब से बुरी तरह मुतासर हुए हैं, इंशाअल्लाह हम जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, उनके लिए हम वसाइल तलाश करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कॉमनवेल्थ और इस्लामी यकजहती गेम्स में मेडल जीतने वाले अरशद नदीम, नूह दस्तगीर भट्ट, शाह हुसैन, शरीफ ताहिर, मोहम्मद इनाम समेत दूसरे खिलाड़ियों में इनामी चेक तकसीम किए। खिलाड़ियों ने हौसला अफजाई करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। प्लेयर के लिए बड़ी हौसला अफजाई होती है, ये चीज़ें आगे लेके जाती हैं स्पोर्ट्समैन को। जब कोई प्लेयर कुछ अचीव करके आता है तो कम से कम उसको अप्रिशिएट करनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रिशिएट किया और साथ साथ उनको कैश प्राइजेस भी दी गई है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि इतने बड़े इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, इतनी फाइट्स विन की, पाकिस्तान के लिए मेडल जीता। और आज जो और बहुत बड़ी खुशी है कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई। ऐसे प्लेयर को सपोर्ट किया जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के प्लेयर ओलंपिक में भी मेडल ला सकते हैं। जब ऐसे कैश प्राइज मिलते हैं तो जाहिर बात है हौसला अफजाई होती है। और प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उनकी तरफ से बड़ी हौसला अफजाई हमारी हुई है। और इसी तरह अगर जो हमारे जो प्लेयर्स हैं मेडल लेकर आते हैं, अगर जल्द से जल्द उनकी अप्रिसिएशन इस तरह की जाए तो ये उनके लिए बड़ी प्लेयर्स के लिए अच्छी बात है। ये बड़े ऑनर की बात है, तो बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा महसूस हुआ है उनसे मिलकर। मौजूदा PM ने उन्हें इनवाइट दिया अपने पास आने का और अप्रिशिएट किया कि जी आपने बहुत पाकिस्तान के लिए वर्क किया। तकरीब से खिताब में 2 गोल्ड मेडल हासिल करने वाले अरशद नदीम ने अपने गाँव में अस्पताल के क़याम और स्कूल को अपग्रेड करने का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म ने तमाम खिलाड़ियों के मुतालबात को मंजूर कर लिया। मोहम्मद नवीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने तलबा में तनकीदी और मंतकी सोच पैदा करने पर जोर देते हुए कहा है कि मेहनत और तनकीदी सोच की सलाहियतें तालीमी और पेशा वराना जिंदगी में कामयाबी की बुनियाद हैं।
गिलगित बल्तिस्तान में मैट्रिक इम्तहानात में आला पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवानों को कामयाबी हासिल करने के लिए अपनी सलाहियतों पर एतमाद होना चाहिए। उन्हें बेहतर रोजगार के हुसूल के लिए अपने इल्म और काबिलियत में इजाफा करते रहना चाहिए। सदर ममलकत ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के बेपनाह कुदरती वसाइल से तरबियत याफ्ता इंसानी वसाइल की मदद से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन PTI इमरान खान की खातून जज को धमकी देने के केस में अबूरी जमानत मंजूर कर दी और पुलिस को 1 सितंबर तक उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने भी इमरान खान के खिलाफ दफा 144 के तहत मुकदमे में 7 सितंबर तक जमानत मंजूर कर ली। तफसील बता रहे हैं इमरान मनसब खान। 20 अगस्त को F9 पार्क में रैली से खिताब में खातून जज को धमकी देने के केस में अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने की। इमरान खान के वकील बाबर अवान ने दलाइल में कहा कि FIR में शिकायत कुनिंदा मजिस्ट्रेट है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक तकरीर में IG इस्लामाबाद, एडिशनल IG और खातून जज समेत जिन 3 अफराद को धमकी दी गई वो मुकदमे में शिकायत कुनिंदा ही नहीं। वकील सफाई ने तकरीर के वो हिस्से भी पढ़कर अदालत में सुनाए जिसमें इमरान खान ने IG इस्लामाबाद, एडिशनल IG और खातून जज को मुबैना तौर पर धमकियां दी थीं। जज राजा जवाद अब्बास के इस्तफसार पर बताया गया कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से अदालत में कोई नहीं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद इमरान खान की 1 लाख रुपए के जमानती मसलों के एवज 1 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली और पुलिस और मुद्दई को नोटिस जारी कर दिए। खातून जज को धमकाने पर इमरान खान के खिलाफ थाना मरगला में इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राहदारी जमानत भी हासिल कर रखी थी। चेयरमैन PTI की पेशी के मौके पर फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स से एतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कॉम्प्लेक्स की तरफ जाने वाली तमाम सड़कें बंद कर दी गई थी और गैर मुतल्लिका अफराद को इमारत में दाखिले की इजाजत नहीं थी। इस्लामाबाद की कचहरी में भी इमरान खान के खिलाफ दफा 144 के तहत थाना अपारा में दर्ज मुकदमे की समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा ने समाअत की। अदालत ने चेयरमैन PTI की 5000 रुपए मचलकों के एवज 7 सितंबर तक जमानत मंजूर करते हुए पुलिस को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। अदालत ने PTI रहनुमा असद उमर की अबूरी जमानत भी 5000 रुपए मचलकों के एवज मंजूर कर ली। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। PTI फॉरेन फंडिंग असर दिखाने लगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जाली भारतीय ह्यूमन राइट्स वॉच का गठजोड़ सामने आ गया। जालसाजी, फेक न्यूज और झूठ के प्रचार में हिंदुस्तान का कोई सानी नहीं। नाम नहाद आलमी तंजीमों के भेस में भारत अपने मसमू मसाइल को झूठे प्रोपेगेंडे के तहत हासिल करने में सरगर्म है। नाम नहाद भारतीय ह्यूमन राइट्स वॉच का शहबाज गिल की गिरफ्तारी के मामले को उछालना और इमरान खान की दहशतगर्दी एक्ट के तहत गिरफ्तारी के लिए वर्किंग ग्रुप के जरिए मुल्क में इंतशार फैलाना एक बहुत बड़ी साजिश है। इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये तासुर देने की कोशिश की गई कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी आलमी सतह पर भूचाल लाने के मुतरादिफ है। दरहकीकत ये एक बोगस और जाली ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अकाउंट से 3 ट्वीट्स हैं जिनमें वाज़ेह तौर पर भारत के 2 शहरों बेंगलोर और नई दिल्ली की लोकेशन भी देखी जा सकती है। 25 सितंबर को होने वाले कौमी असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून की हिमायत का उसूली फैसला किया है। इस सिलसिले में NA 118 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राय शाहजहां भट्टी मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार डॉक्टर शस्त्रा मनसब के हक में दस्तबरदार हो गए। तफसील बता रही हैं लाहौर से फरहाना खान। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बड़े मुश्किल हालात में हुकूमत संभालने का फैसला किया क्योंकि दोनों जमातों का विजन सियासत बचाने की बजाय मुल्क बचाना है और कौम को मुश्किलात से निकालना है। उन्होंने कहा कि इस वक्त अवाम इमरान नियाजी की 4 साल दौरे हुकूमत में किए गए गलत फैसलों का खमियाजा भुगत रही है। आज फेडरल गवर्नमेंट को जो चैलेंजेस हैं वो कोई भी जमात अकेले उनको एड्रेस नहीं कर सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये बर्डन शेयरिंग की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मलिक नदीम कामरान ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए ठोस इक़दामात उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान नियाजी को न मुल्क की परवाह है न कौम का एहसास, बल्कि वो अपने सियासी मकासद के लिए मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान बचाने की ज़रूरत है, पाकिस्तान के लिए बेहतरी की ज़रूरत है। कोई शख्स इतना जोरवर हो गया है कि वो ना कानून को समझता है, ना अदलिया को समझता है, ना किसी बात को समझता है। शहजाद सईद चीमा और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि इस्तीफे देने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान तनख्वाहें और मुराद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि 9 हलकों से इमरान खान के इलेक्शन लड़ने का फैसला गैर मंतकी है। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं तल्लाल चौधरी और आबिद शेर अली ने कहा है कि साबिक हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से मुल्क को आज महंगाई का सामना है। फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए तल्लाल चौधरी ने कहा कि अपने दौरे हुकूमत में इमरान खान ने अवाम की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया।
عمران خان سے کسی غریب کو اور کسی پاکستانی کو کسی اچھے کی امید نہیں تھی. اگر امید ہے تو وہ نون لیگ اور اس کی قیادت اور اس حکومت کے ساتھ ہے. ہمیں لوگوں کی امیدوں پر پورا اترنا ہے. عمران خان کے 3.5 سال میں لوگوں کو نچوڑ لیا گیا ہے. رہنما مسلم لیگ نون عابد شیر علی نے کہا کہ ہمارا مقابلہ مہنگائی اور بے روزگاری سے ہے. عمران خان نے پاکستان کو IMF کے پاس گروی رکھا. عمران نیازی کی وجہ سے لوگ مشکل حالات میں ہیں. 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی, ملک میں بجلی نہیں تھی, ملک میں نئے کارخانے لگا کے بجلی کو پھر بھی غریب عوام کے لیے 2 سے 2.5 روپے نواز شریف صاحب نے نہیں بڑھنے دیا. عمران نیازی سے تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے, نہ پہلے تھا. ہمارا اس وقت جو مقابلہ ہے وہ مہنگائی کے ساتھ ہے, وہ بے روزگاری کے ساتھ ہے. اطلاعات و نشریات کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس چیئرمین فیصل جاوید کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا. قائمہ کمیٹی نے وزارت اطلاعات کو ہدایت کی کہ سیلاب متاثرین کے لیے ہنگامی بنیادوں پر PTV اور ریڈیو پاکستان پر پروگرام نشر کیے جائیں. اجلاس میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے جاں بحق افراد کے لیے مغفرت کی دعا کی گئی. چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ PTV اور ریڈیو پاکستان سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. وفاقی سیکرٹری اطلاعات شاہرہ شاہد نے بتایا کہ PTV پر سیلاب کے حوالے سے خصوصی پروگرامز نشر کیے جا رہے ہیں. کمیٹی کے رکن سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ آزادی اظہار رائے پر کسی قسم کی قدغن نہ لگائی جائے. ایجنڈے کے دیگر نکات آئندہ اجلاس تک مؤخر کر دیے گئے. مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے. تازہ کارروائی کے دوران مزید 3 کشمیری نوجوان شہید کر دیے گئے. KMS کے مطابق فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع بارہمولہ کے علاقے اوڑی میں کمل کوٹ کے مقام پر ایک پرتشدد کارروائی کے دوران شہید کیا. بھارتی فوجیوں نے ضلع بانڈی پورہ کے علاقے پیٹ کوٹ میں محمد یوسف اور منظور احمد نامی 2 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا. بھارتی فورسز اہلکاروں نے سری نگر، بڈگام، کپواڑہ، پلوامہ، اسلام آباد، شوپیاں، کولگام سمیت وادی کے مختلف علاقوں میں تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ جاری رکھا. ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں مقبوضہ علاقے میں بڑھتے ہوئے بھارتی مظالم کی مذمت کی ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ مسلسل فوجی تشدد نے کشمیریوں کی بقا کو شدید خطرے سے دوچار کر دیا ہے. ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے متنازع خطے میں بھارتی شہریوں کو ووٹنگ کا حق دینے کے اقدام کو کشمیری مسلمانوں کو بے اختیار کرنے کی سازش قرار دیا. انجمن اوقات جامع مسجد سری نگر نے ایک بیان میں قابض حکام سے کہا ہے کہ وہ اگر اپنے دعووں میں سچے ہیں تو وہ انجمن کے سربراہ میر وائز عمر فاروق کو تاریخی جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے اور خطبہ دینے کی اجازت دیں. میر وائز 5 اگست 2019 سے گھر میں مسلسل نظر بند ہیں. بھارت میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ناصیبہ الفاظ استعمال کرنے والے BJP کے رکن اسمبلی T راجا سنگھ کی رہائی کے خلاف بھارتی مسلمان سراپا احتجاج ہیں. بھارتی میڈیا کے مطابق تلنگانہ ریاست کے شہر حیدرآباد میں ہزاروں افراد نے ملون T راجا سنگھ کے خلاف مظاہرہ کیا اور حکام سے اس کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا. بھارتی پولیس نے مظاہرین پر تشدد کیا اور متعدد کو گرفتار بھی کر لیا. بھارتی حکام نے ملون T راجا سنگھ کو کچھ دیر کے لیے تحویل میں لے کر رکھا تھا. ملون کی رہائی کے خلاف مسلمان بھارت کے مختلف شہروں میں سراپا احتجاج ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے دولت مشترکہ کانفرنس کے موقع پر کینیڈا اور سری لنکا کے اسپیکرز اور کامن ویلتھ سیکرٹری جنرل سے الگ الگ ملاقاتیں کی. کینیڈین سینٹ کے اسپیکر جارج فیوری اور ہاؤس آف کامنز کے اسپیکر اینٹنی روکر سے گفتگو کرتے ہوئے راجہ پرویز اشرف نے بتایا کہ پاکستان میں شدید بارشوں اور سیلاب سے بڑے پیمانے پر جانی مالی نقصان ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ کینیڈا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج کی جانب سے انسانی حقوق کی پامالیوں کے خاتمے میں کردار ادا کر سکتا ہے. سینٹ کے چیئرمین محمد صادق سنجرانی سے ورلڈ فوڈ پروگرام کی خصوصی مشیر اردن کی شہزادی سارہ زید نے ملاقات کی اور اس دوران ورلڈ فوڈ پروگرام کے پاکستان میں جاری مختلف منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. چیئرمین سینٹ نے ماں اور بچے کی غذائیت کے حوالے سے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز دی. چیئرمین سینٹ نے اقوام متحدہ کی خصوصی مشیر کو ملک بھر میں سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال سے آگاہ کیا. شہزادی سارہ زید نے سیلاب متاثرین کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے عزم کا اظہار کیا. وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل سے اردن کی شہزادی سارہ زید نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت صحت کے شعبے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے. بین الاقوامی سطح پر ماں اور بچے کی غذائیت و صحت کے حوالے سے شہزادی کی خدمات لائق تحسین ہیں. پرنسس سارہ زید نے پاکستان میں ماں اور بچے کی صحت اور غذائیت کے پروگرام کی کارکردگی کو سراہا.
वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमी मकाम ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए माशरे के तमाम अफराद को कोशिशें करना होंगी। मंगोरा में सैलाब से मुतासर इलाकों में मकान बाग, माला बाबा, स्वाद प्रेस क्लब और फजागढ़ दरियाए सवाद के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सूबाई इदारे, NDMA और पाक फौज के जवान इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। हैदराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वफाकी वजीर अमीदुल हक ने कहा है कि हालिया बारिशों ने सिंध के दीगर इलाकों की तरह हैदराबाद को भी शदीद मुतासर किया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से निकासियाब को यकीनी बनाकर रिलीफ सरगर्मियों को तेज किया जाए। उन्होंने कहा कि तूफानी बारिशों और सैलाब ने सिंध में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है, जिससे निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। जमीयत उलमा इस्लाम फी के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए मुक़य्यर हसरात से खुसूसी अपील की है। JUI कारकुनों के नाम पैगाम में उनका कहना था कि हर सतह पर कैंप कायम किए जाएं, मुतासिरीन को खाने पीने की और अशियाए ज़रूरिया समेत दीगर चीज़ें और खैमे मुहैया किए जाएं। उन्होंने कहा कि महफूज इलाकों के मकीन और मुख़य्यर हज़रात मुतासिरीन को तैयार खाना पहुँचाने का इंतज़ाम करें ताकि मुसीबत में घिरे अपने बहन भाइयों की मदद की जा सके। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी तौर पर 5 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान किया है। सैलाब मुतासरीन के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने फ्लड रिलीफ फंड कायम करने की भी हिदायत की। वज़ीर आला ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली अव्वलीन तरजीह है। पंजाब हुकूमत मुसीबत में घिरे बहन भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेगी। मुतल्लिका इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि पॉलिसियों का तसलसल और सियासी इस्तेहकाम रियासत की तरक्की के बुनियादी अनासर हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा कि हमें बरामदात बढ़ाने के लिए इकदाम करना होंगे। मुश्किल वक्त में चीन ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की है। उन्होंने कहा कि 8 करोड़ मुलाजमतों के मौके चीन से दूसरे मुल्कों को मुंतकिल हो रहे हैं। हुकूमत मुल्क की तरक्की और माशी इस्तेहकाम के लिए इकदाम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान शिमाल और मशरकी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान शिमाल और मशरकी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली पंजाब, इस्लामाबाद और कश्मीर में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को है। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ है। तुरबत 38, नौकुंडी 37, दालबंदीन और फैसलाबाद में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चंद अहम शहरों की ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील: इस्लामाबाद 28, लाहौर 33, कराची 31, पेशावर 36, कोयटा 22 और गिलगित में भी 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।